ہمارے حیدرآباد کے سی پی صاحب کے انسٹرکشنز پہ میں ایک مہینے سے جو اسٹیبلشمنٹس ہیں، ہوٹلس ہیں، ان کو ٹائم کی پابندی کے لیے گزارش کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں ایسے، اور قانونی کارروائی بھی کر رہا ہوں کہ کیسز لگا رہے ہیں اور بینڈ اوور کر رہے ہیں. اور ایک مہینے سے میں اس کام پہ توجہ دے رہا ہوں، اور وقفاً میں اپنے ایرے میں سرپرائز وزٹ بھی کر رہا ہوں. مجھے ایک دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹس اور ہوٹل اونرس ہیں ان پر وہ کیا بولتے جو بھی نہیں چل رہی وہ کہ جو کچھ محاورہ ہے ویسا حال ہے. اور میں آبزرو کر رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ ہمارے جو ایرے میں ہے زیادہ تر طبقہ مسلمان لوگ بزنس کر رہے ہیں، اور مسلمان اور جو بچے ہیں اس بزنس میں آ کے ڈیلی نائٹس میں بیٹھ کے وہ ان کا بھی جو ہے وہ بھی ان کا بھی کیریکٹر خراب ہو جا رہا، ان کی زندگی خراب ہو جا رہی. تو بلکہ ایک افسوس بھی مجھے ہے. بہرحال ہم ان کو چینج کرنے کی ٹھان لیا ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے. اتفاقاً میرے آفس میں ایک ہمارے قریبی مفتی صاحب کا آنا ہوا تھا، تو ایسے معاشرے پر ڈسکشن ہوا اپنے مسلم معاشرے پر. تو میں ان سے بھی میں ذکر کرا تو بولے ایسا قانون کی عمل واری کرنا بہت ضروری ہے. اسلام بولے تو خالی نماز پڑھنا، روزانہ حج عمرہ نہیں، دنیاوی معاملات میں معاشرات میں بھی ہم اس کی عمل واری کرنا ضروری ہے. جبھی ایمان مکمل ہے بتا رہے تھے. اور قانون کی عمل واری میں اگر جیسے کہ ٹائم لیمٹ 12 بجے ہے تو 12 بجے بند کر لینا وہ شریعت اور اسلام کے نقطہ نظر سے صحیح ہے. اور 12 بجے کے بعد جو کاروبار کیا جا رہا ہے ناجائز ہے بول کے بتا رہے تھے. تو ایک اپنے قانون کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور اپنے اسلام اور دین کے لحاظ سے بھی وہ ایک غلط کام ہو رہا ہے. تو مجھے اس کا بہت افسوس ہے. تو میں ہمارے مفتی صاحب سے ایک گزارش، ایک ریکویسٹ کیا کہ خیر اگر میں یہ سب اسلامی اور شریعت کے باتاں کرا تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جاتی. تو مفتی صاحب سے میں ایک ریکویسٹ کرا کہ ایک ہمارے جو مسلم ایریا ہے اپنا، اس میں جو رات دیر کا جو ناجائز جو کام چل رہے ہیں اس لحاظ سے ایک پیغام دینے کے لیے میں ریکویسٹ کرا. تو ہمارے مفتی صاحب بھی اس کے لیے راضی ہو گئے. تو مہربانی کر کے میں ابھی بھی اپنے مسلم بھائیوں سے جو حالانکہ الحمدللہ بہت بڑے بزنس مین ہیں اور وہ غلط ناجائز طریقے سے کاروبار نہ کرنے کی گزارش کر رہا ہوں. اور اس موقع پر میں مفتی صاحب سے بھی التجا کرتا ہوں کہ یہ اس میں شریعت اور اسلام کے نقطہ نظر سے یہ کیسا ہے. تو میں مفتی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام احمد اللہ نثار قاسمی، دارالعلوم دیوبند سے میری فراغت ہے، اور یہاں مہدی پٹنم قطب شاہی مسجد میں ایک مدرسے میں میری خدمت ہے. گنج شہیداں آصف نگر جرہ کی مسجد میں جمعہ کی ذمہ داری ہے. مجھے جناب ایڈیشنل ڈی سی پی صاحب اشفاق صاحب کی دعوت آئی آپ کی طرف سے، اور حکم ہوا کہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے، ہمارے دوست و احباب اور بھائیوں کے سامنے کچھ اسلامی باتیں اور ہماری خیر خواہی، ہمدردی اور بہت ہی پیار محبت سے آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی باتیں عرض کرنی ہے جس کی وجہ سے ہم اور ہمارا اسلام پوری دنیا میں، ہمارے اس ملک اور شہر میں بدنام ہوتے جا رہا ہے. ہماری وہ باتیں جسے ہمیں سدھارنا بہت ضروری ہے. ایک سچی بات یہ ہے کہ آج مسلمان ہو یا اسلام ہو، مسجدوں اور مدرسوں کی وجہ سے بدنام نہیں ہے، مارکیٹ اور ہوٹلوں کی وجہ سے بدنام ہے. وہاں آدمی اللہ کے سامنے روتا دھوتا بھی ہے،
सजदे भी करता है और आखिरत और जहन्नम की फिक्र से आदमी तौबा भी करता है, लेकिन होटल और दुकान पर आने के बाद वो एक सच्चा मुसलमान नहीं बन पाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हिदायत यह है कि मुसलमान देर रात तक बिला ज़रूरत के ना जागे। अगर वाक़यतन ज़रूरत है, मसलन कोई इबादत करना चाह रहा है या कुछ पढ़ना लिखना चाह रहा है या कोई ज़रूरी मीटिंग और मशवरा है, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है। बिला ज़रूरत देर रात तक जागना शरीयत की तालीमात के ख़िलाफ़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सुन्नतों के ख़िलाफ़ चलने वाली ज़िंदगी में अल्लाह कोई बरकत नहीं रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि मेरी उम्मत की उम्र 60-70 साल के दरमियान होगी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 40 से 50 साल के दरमियान में इंसान बूढ़ा हो रहा है, बल्कि मरने के करीब हो रहा है। मौत को दावत दिया जा रहा है सुन्नतों के खिलाफ जिंदगी गुजारने की वजह से। और साइंस ये कहती है कि जो लोग रात देर तक जागते हैं उनमें 23 बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उनमें से 2 बीमारियां मशहूर हैं, एक दिमाग का कैंसर, दूसरा हार्ट अटैक। ये बीमारियां पैदा हो जाती हैं जो लोग रात देर तक जागने के आदी हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है कि रात का खाना जल्दी खाया जाए। मगरिब से इशा के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था रात का खाना खाने का, और हुक्मा ने भी लिखा है कि रात का खाना इतनी पहले खा लो कि खाने के बाद 3 घंटे 4 घंटे का फासला रहे कि तुम जब बिस्तर पर पहुंचो, इतना पहले खाने का हुक्म फरमाया। और बास किताबों में लिखा है कि शाम का सूरज गुरूब होने से पहले खाने से फारिग हो जाओ। और चुनांचे हम देखते भी हैं कि रमजान के मौके पर आदमी दिन भर का भूखा रहने के बाद मगरिब के टाइम पर ही इफ्तार कराया जाता है, ताकि वो रमजान की मेहनत और मशक्कत मुसलमान को 11 महीने मुसलमान बन के रहने की ट्रेनिंग है। यहाँ रात देर तक होटलें खुली रहने और रात देर तक खाते खिलाते रहने में, आदमी जब रात देर गुजरने के बाद खाता है तो उसमें शुगर और डायलिसिस की बीमारी आम तौर से पैदा हो जाती है। आप हजरात डॉक्टरों से मालूम कर सकते हैं, हमने भी मालूम किया, डायलिसिस का और शुगर का मर्ज पूरी दुनिया में जहां सबसे ज्यादा है, इंडिया टॉप लेवल पर है। और इंडिया में हमने किसी रिसर्च करने वाले से मालूम किया तो बताया गया कि इंडिया में हमारा ये तेलंगाना और आंध्रा का एरिया, बिलखुसूस उसमें हैदराबाद का एरिया जिसमें सबसे ज्यादा डायलिसिस सेंटर पाए जाते हैं, उन डायलिसिस सेंटरों में 300 से ज्यादा डायलिसिस सेंटर हैं। उनमें सबसे ज्यादा 80 से 90% मुसलमान पेशेंट हैं। रात देर तक खाने की बीमारियों की वजह से शुगर का मर्ज पैदा हो जाता है, डायलिसिस का मर्ज पैदा हो जाता है। आज सेहतमंद मुसलमान मिलना मुश्किल है, बीमार मुसलमान हर जगह पाए जाएंगे। तीसरी बात यह है कि हमारे रात देर तक जागने की वजह से, शोर शराबे की वजह से, चबूतरों और कट्टों पे बैठे रहने की वजह से, होटलें आबाद करने की वजह से, कितने ऐसे गैर मुस्लिम महल्ले हैं जो अपने महल्लों में मुसलमान को मलगी और मकान किराए पे देने तैयार नहीं है। वो अपने महल्लों में मुसलमान को बर्दाश्त नहीं करते, इस वास्ते कि इनकी शादियां रात देर तक होती हैं, इनके खाने रात देर तक होते हैं, इनका जागना और आवारगी रात देर तक होती है, होटलबाजी रात देर तक होती है। जिस जमाने में होटलों के खाने को ऐब समझा जाता था, आज होटल के खाने ही शान और फैशन समझे जाने लगे। इस वास्ते कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों को अपने महल्ले में किराए पर मकान देने तैयार नहीं है। अब इससे खुद समझे हम, जहां भाईचारगी हम पैदा करना चाहते हैं मुसलमान और गैर मुस्लिम में, हमारी बदअमली और बदअखलाकी की वजह से वो नफरत पर उतर आए हैं कि इससे हम मुसलमान वो है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। अब इसमें हम अपने किरदार से गैर मुस्लिम भाइयों को तकलीफ पहुंचाने के आदी बन जाते हैं। इससे इस्लाम भी बदनाम होता है, मुसलमान की छवि भी बदनाम होती है। हम तो दुनिया में आए थे पूरी दुनिया को इस्लाम का पैगाम देने के लिए, अमन और शांति का पैगाम देने के लिए, लेकिन अपनी बदअखलाकी और बदकिरदारी की वजह से इस्लाम को बदनाम करने का जरिया बन गए। और तीसरी चौथी बात यह है, हुकूमती कवानीन जिसमें मुसलमानों के लिए हुकूमत और सरकार की तरफ से कोई रूल्स बनाए जाते हैं, जैसे ट्रैफिक और गाड़ी चलाने के रूल्स हैं कि यहाँ पार्क करे, यहाँ पार्क ना करे, इस रूट से जाए, इस रूट से ना जाए, सिग्नल पढ़ने पर रुक जाए और सिग्नल पढ़ने पर चला जाए, तो वो कवानीन को फॉलो करना मुसलमान पर वाजिब है, जरूरी है। इससे मुल्क के अंदर
झगड़ा, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, एक्सीडेंट होना, इन सब चीजों से बचा जाता है। इसी वास्ते उलमा ने लिखा है अगर हुकूमत का कानून है कि वो हेलमेट पहनकर जाए तो पहनकर जाना वाजिब है, ना पहनकर जाना गुनाह होगा, क्योंकि इंसान अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। इससे मालूम हुआ हुकूमती कवानीन को जब फॉलो करना जरूरी है, उन्हीं कवानीन में से कानून ये है कि होटलें 11 से 12 के अंदर बंद हो जाएं। जब सरकार हमें आप समझें कि हुकूमत 12 बजे रात तक होटल चलाने की इजाजत दे रही है, 12 बजे के बाद भी कौन सी जिन्नाती कौम है जो खाने के लिए आ रही है? हमारे बाप दादाओं ने भी खाया है, बादशाहों ने भी खाया है, लेकिन क्या हम उनसे भी ज्यादा खाने वाले बन जाएंगे कि रात के 12 बजे भी होटलें खुल रही हैं? बाज होटलें तो वो हैं जो दिन में बंद रहती हैं और 12 के बाद ही खुलती हैं। तो आप बताइए कितना ज्यादा नुकसानदेह होगा। हुकूमत के कानून को फॉलो करना मुसलमान पर वाजिब है। जो कानून जायज रहता है और जिसमें शरीयत की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होती है, उस कानून पर अमल करना मुसलमानों के लिए वाजिब है। और यह हुक्म सिर्फ किसी एक मसलक के लिए नहीं है, हर मसलक में यही हुक्म है कि जायज कवानीन की इत्तिबा करना मुसलमानों पर वाजिब है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वाला गुनहगार होगा, और नाजायज तरीके से इस तरह की कमाई करने वाला भी गुनहगार होता है। और ये भी देखें, 5वीं बात यह है कि रात देर तक होटलों में जागने से अपनी बीवियों को वक्त नहीं दिया जा सकता, वक्त पर घर नहीं पहुंचते, अपने बेटे और बेटियों को वक्त पर उन्हें वक्त नहीं दिया जा सकता, जिसकी वजह से बच्चों में जो आवारगी आ रही है, जो बर्बादी आ रही है, वो हम अंदाजा नहीं कर सकते कि जैसे बाप होटलबाजी का आदी बन गया, औलाद भी वैसे आवारगी के शिकार होती जा रही है। पहले जमाने में रात के 8 बजे 9 बजे सारे बाप बेटे बड़े छोटे सब घर पर आ जाया करते थे, एक वक्त में बैठकर टेबल पर खाना खाया जाता था। आज घरों में खाने का सिस्टम बर्बाद हो गया, घरों को टाइम पर आने का सिस्टम बर्बाद हो गया, अपनी औलाद को वक्त देकर उनकी तरबियत करने का सिस्टम बर्बाद हो गया। बच्चे बिगाड़ने में हुकूमत का दखल नहीं है, कोई सरकार, कोई पुलिस और कोई सरकारी नुमाइंदा हमारी मुसलमान नौजवान लड़कों लड़कियों के हाथ पकड़ पकड़ कर उन्हें गलत रास्ते पे नहीं ले जा रहा है। माँ बाप के बारे में यह बात कही गई थी कि अपने बच्चों को निवाला खिलाओ सोने का, लेकिन निगाह रखो शेर की कि वो कल किस वक्त आ रहा है, किस वक्त जा रहा है। अब हमारे नौजवान बच्चे होटलों पे हैं, अब ये होटलों पे आ रहे हैं क्यों? होटल खुले हैं तभी तो आ रहे हैं। अगर होटल बंद हो जाते, वक्त पर अपनी कमाई से फारिग होकर अपने घर चले जाते, जैसे लॉकडाउन के जमाने में हमने देखा कि कौन आदमी हिम्मत कर रहा था बाहर निकलने की। जब दुकान खुलता है तो ही ग्राहक आता है, अगर दुकान बंद रहती है तो कोई ग्राहक आने तैयार नहीं होता है। इसमें हम दूसरे घरों के बच्चों को भी घरों से बाहर लाने का और उन्हें घरों के बाहर रखने का नुकसान और गुनाह अपने सर पे ले रहे हैं। और एक बात, छठी बात यह भी है कि मुसलमान महल्लों में, मुसलमान एरियो में ये बात ज्यादातर पाई जाती है कि इस एरिया में होटलें आबाद रहती हैं, इस एरिया में होटलें खुली रहती हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि जिस मुल्क में हम सब रहते हैं, दूसरे मजहब के लोग भी रहते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम भाइयों के और दूसरे मजहब के लोगों के महलों और उनकी होटलों में वक्त पर बंद कर देना, वक्त पर सो जाने का एहतमाम होता है, और मुसलमानों के एरियो में खास तौर से पुलिस वालों को आना पड़ता है, उन्हें लाठी लेकर उन्हें तंबीह करना पड़ता है कि बंद करो बंद करो। दूसरे भाइयों के महलों में जाकर इस तरह तंबीह करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। क्या वजह है कि एक दूसरी कौम कानून को फॉलो कर रही है और मुसलमान कानून को फॉलो करने तैयार नहीं है। आधा शटर बंद रखकर चलाते रहेगा, जैसे ही गाड़ी की आवाज आएगी फौरन बंद कर देगा, रोड पर किसी को खड़ा करेगा, आ रहे हैं क्या देखो, जैसे ही इत्तला मिलेगी फौरन सिग्नल देगा, बंद कर देंगे, बाहर का शटर बंद करके पीछे का शटर खोल के चलाते रहेंगे, लेकिन कानून को फॉलो करते हुए कानून की इत्तिबा करना नहीं चाहेंगे, अमन और शांति के साथ जायज तरीके से कमाने के लिए तैयार नहीं होंगे। और एक बात ये भी देखें, जो लोग रात देर तक होटल चलाते हैं वो सुबह कभी वक्त पर नहीं उठ सकते। सुबह जल्दी उठना मुसलमान की शान है। क्या शर्म की बात नहीं होगी कि गैर मुस्लिम भाई तो वक्त पर उठ रहे हैं, सुबह जल्दी जल्दी वो गुस्ल करके तैयारी करके अपने पार्क में जाके वो वॉकिंग कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, सेहत बना रहे हैं, और मुसलमान रात देर तक जाग रहा है और सुबह देर तक सो रहा है। उलमा ने एक मिसाल दी है, बकरियां जो हलाल जानवर हैं
वो रात होते ही सो जाती हैं और सुबह जल्दी उठ जाती हैं। कुत्ते रात देर तक जागते रहते हैं और सुबह की जब अज़ां होती है भौंकते हुए फिर सो जाते हैं। हमें अल्लाह ने हलाल जानवरों के जरिए से सबक दिया है कि जो हलाल जानवर होते हैं वो वक्त की इत्तबा करते हैं और फॉलो करते हैं, और जो हलाल नहीं होते हैं वो वक्त की इत्तबा और उसे फॉलो नहीं करते हैं। इसके नुकसानात क्या क्या होते हैं अंदाजा कर लीजिए। जो लोग रात देर तक होटलें चलाते हैं, जो लोग रात देर तक होटलबाजी करते हैं, रात देर तक चबूतरों पर आबाद रहते हैं, रात देर तक कट्टों पर आबाद रहते हैं, रात देर तक होटलों के खाने में मसरूफ रहते हैं, ये लोग इल्ला माशाअल्लाह सालों और महीनों गुजर जाते हैं, फजर की नमाज की तौफीक नहीं होती है। जो कौम सुबह उठकर अल्लाह की इबादत किए बगैर, हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान फजर की नमाज पढ़कर फिर कारोबार के लिए निकलता है, अल्लाह उसके हाथ में ईमान का और कामयाबी का झंडा देते हैं। जब वो जाता है तो अल्लाह उसे रोजी में बरकत और कामयाबी के साथ लौटता है, और जो फजर की नमाज पढ़े बगैर कारोबार पे निकलता है तो अल्लाह उसके हाथ में शैतान का झंडा देते हैं कि वो कभी कामयाबी और बरकत के साथ वापस नहीं लौटता। दूसरा नुकसान ये होता है, रात देर तक होटल चलाने और होटलबाजी की वजह से महीनों और सालों गुजर जाते हैं कि ऐसे लोगों को सुबह का सूरज देखने की तौफीक नसीब नहीं होती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी बुकूरी उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के टाइम में बरकत अता फरमा। एक सहाबी गरीब थे, चंद महीनों में मालदार हो गए। जब उनसे पूछा गया आपकी मालदारी का राज क्या है, तो उन सहाबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दुआ है, सुबह सुबह काम पर लग जाओ अल्लाह बरकत देगा। तो मैं सुबह सुबह काम पर लग जाता हूं और शाम टाइम पे आके अपने घर पे वक्त गुजार लेता हूं। और आज हम सुबह 11 बजे हमारी सुबह होती है और रात 2-3 बजे तक हम जागते रहते हैं। तीसरा, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने एक नसीहत फरमाई, बेटा तुम इतने भी बेशरम ना बनो कि जानवर तुमसे पहले सुबह में उठ जाए और तुम रात देर तक सोते रहो। मुसलमानों को सुबह पहले उठने की तालीम और तरगीब दी गई है। और तीसरा नुकसान ये होता है, जो लोग रात देर तक होटलों पे जागते रहते हैं, चबूतरों कट्टों पर जागते रहते हैं, सुबह अपनी औलाद को वक्त पर स्कूल नहीं भेज सकते, उनकी तालीम का जायजा नहीं ले सकते, उनकी तरबियत का जायजा नहीं ले सकते। रात घर पहुंचे, बच्चे सो चुके थे, सुबह घर से बच्चे स्कूल के लिए निकले, ये सो रहे थे। रात में बच्चे सो रहे थे तब आप घर पे आए, और सुबह आप सो रहे थे तब बच्चे घर से स्कूल चले गए। ना बाप घर में होते हुए बच्चों से मुलाकात सही हो रही है, ना उनकी तरबियत और उनकी तालीम पे सही तवज्जो हो रही है। दसियों बार स्कूल और कॉलेज वाले पेरेंट्स मीटिंग में बुला कर थक जाएं तो भी अपनी औलाद की तालीम के लिए भी कभी पेरेंट्स मीटिंग में अटेंड करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर भी औलाद के बारे में नवाबों के ख्वाब देखते रहते हैं कि हम अपनी औलाद को ऐसे बनाना है। एक नुकसान ये भी होता है, देर रात तक जागने से पूरे मुल्क और शहर में मुसलमानों की छवि बदनाम होती है। ऐसी आवाज और ऐसा जहन बना दिया जाता है या बन जाता है कि मुसलमान ऐसे ही रहते हैं, मुसलमानों के महल्ले ऐसे ही रहते हैं, मुसलमानों के जवान ऐसे ही रहते हैं, रात रात तक जागते रहते हैं। कितनी शर्म की बात है, जो औरतें अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, हमने भी कई बार देखा जब कभी सफर से वापस आते हैं, 2 बजे 1:30 बजे एक जगह होटल खुली है, वहां हम खाने के लिए गए तो पूरा होटल 90% भरा हुआ था और उसमें से 80% मुसलमान थे। बुर्के वाली औरतें रात 1:30 बजे तक होटल में खाना खा रही। आप बताएं कितने अफसोस की बात है, कहां मुसलमान मुआशरा, कहां से इन्हें ऐसी तालीम दी जाती है? क्या इससे इस्लाम बदनाम नहीं होता, मुसलमानों की छवि बदनाम नहीं होती? एक नुकसान यह भी होता है, ऐसी हालत में जो कानून की खिलाफ वर्जी के साथ कमाई जाने वाली कमाई में अल्लाह कभी बरकत नहीं रखते हैं। बेबरकती के साथ कमाई जाने वाली रोजी, उसमें हमेशा मुसीबतें आती हैं। पहली मुसीबत ऐसी कमाई में ये आती है कि कमा कर भी आदमी कर्जे में डूबा रहता है। दूसरी मुसीबत ये आती है, कमा कर भी बीमारियों का शिकार रहता है। जितना कमाएगा उसमें से आधा या पूरा का पूरा डॉक्टरों और हॉस्पिटलों के हवाले करना पड़ेगा। तीसरा नुकसान ये होता है, ऐसी कमाई में न रुकने वाले टेंशनों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। अपनी औलाद को हत्ता के अच्छे रिश्ते और अच्छे दोस्त भी नहीं मिलते। शरई लिहाज से देखें कि इसके नुकसान क्या होते हैं। पहला नुकसान, कानून की खिलाफ वर्जी के साथ होटल चलाने, होटलबाजी करने और कारोबार करने में गुनाह कबीरा है, नाजायज और हराम है। नाजायज और हराम तरीके से आने वाली कमाई में अल्लाह कभी बरकत नहीं रखते हैं, मुसीबतें और परेशानियां रखते हैं।
दूसरा नुकसान ये होता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमान को हुक्म दिया कि अपनी इज्जत की खुद हिफाजत करो, और जो अपनी इज्जत की हिफाजत खुद नहीं करता है तो समाज पर किसी ने यह जिम्मेदारी नहीं रखी है कि उसकी इज्जत दूसरे करें। मुसलमान को चाहिए कि अपनी इज्जत की हिफाजत करें। अब यहाँ रात देर तक होटल चलाएंगे, पुलिस आएगी, डंडे बरसाएगी, चालान लगाएगी, तंबी करेगी, दुकान होटल बंद कराएगी, खुद जलील होना गवारा है, लेकिन इस्लाम और कानून को फॉलो करना गवारा नहीं है। तो हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया और यह पैगाम दिया, मुसलमान की इज्जत काबतुल्लाह के बराबर है। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे को देखकर फरमाया, ऐ काबा, तू कितना मुकद्दस है, तेरा तवाफ नबियों ने किया है, लोग तेरी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, हर नबी ने, हर वली ने तेरा तवाफ किया है, लेकिन एक मुसलमान की शान और उसकी इज्जत से बढ़कर तेरी इज्जत नहीं है। इतनी बड़ी इज्जत जिस मुसलमान को बख्शी गई है, आज वो मुसलमान जलील होते जा रहा है अपनी बदआमाली और बदअखलाकी की वजह से। तीसरा नुकसान ये होता है, देखें, वक्त पर होटल बंद करने का, जब हम कोई परमिट लेते हैं, इजाजतनामा लेते हैं सरकार और गवर्नमेंट से कि हम होटल चलाएंगे और फला फला टाइम दिया जाता है, तो गोया कि हमारा और हुकूमत के दरमियान में एक मुआहदा हो गया, अग्रीमेंट हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुनाफिक है वो शख्स जो वादे की खिलाफ वर्जी करता है। और जब हमारा ये मुआहदा हो गया कि हम होटल 11 बजे तक चलाएंगे, 12 बजे तक चलाएंगे, उसके बाद भी चलाया जाता है, तो ऐसा शख्स वादे की खिलाफ वर्जी करता है। वादे की खिलाफ वर्जी करने वाले के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, यह शख्स मुनाफिक है। तो तीसरा गुनाह यह हो रहा है कि हमें देर रात तक होटलें चलाने से निफाक का गुनाह लाजिम आता है, और निफाक का गुनाह इतना बड़ा है, कुरान मजीद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफिरों से भी बड़ा सख्त अज़ाब मुनाफिकीन का जिक्र किया। और निफाक की वजह से एक नुकसान यह होता है कि कलीमे की मौत मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है निफाक की वजह से। चौथा बड़ा नुकसान यह होता है, दुकान खुली रखे, वक्त से भी जायद, टाइम होने के बाद भी, 12 बजे के बाद भी, या होटल खुली रखे, तो इसमें हमारी होटल, हमारी दुकान खुली रहने की वजह से ही दूसरे नौजवान आते हैं। अगर वो वक्त पर बंद हो जाती है तो दूसरों को भी आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि होटलें बंद हैं, जाके भी क्या करेंगे। जब हम खुले रखते हैं तब दूसरों को गोया के आने की हम दावत दे रहे हैं, तो गोया के समाज के दूसरे नौजवानों को भी रात देर तक जगाने का, आवारगी का, होटलबाजी का, कट्टों और चबूतरों का हम दावत देने और जरिया बनने वाले होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह का जरिया बनने वाला भी गुनहगार है, गुनाह की तरफ दावत देने वाला भी गुनहगार है। हम समाज को रात देर तक जगाने का जरिया बन रहे हैं, 12 बजे के बाद भी होटलें चलाकर। पांचवा गुनाह यह होता है, रात देर तक चलाने में, होटल चलाने के लिए कभी कभार हमें रिश्वत देनी पड़ती है। अपनी होटल चलाने के लिए 2-2, 3-3 बजे तक रिश्वत देनी पड़ती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत देने वाले पर भी, रिश्वत लेने वाले पर भी अल्लाह की लानत बरसती है। और एक हदीस में फरमाया, रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। कितनी सख्त वईद है। अपना कारोबार चलाने के लिए 24 घंटे अल्लाह ने हमें दिए थे, उसमें से कानून ये कह रहा है कि 12 बजे बंद कर दिया जाए। अपनी सेहत का ख्याल रखो, औलाद का ख्याल रखो, बीवी बच्चों का ख्याल रखो, मुआशरे का ख्याल रखो, कानून का ख्याल रखो। इन सब को तोड़कर हमें रिश्वत देकर चलाने की मजबूरी क्या आ गई है। तो ये पांचवा गुनाह ये हो जा रहा है, रिश्वत देकर चलाने की वजह से अल्लाह की लानत के मुस्तहिक बन जाते हैं। और एक गुनाह ये भी होता है कि आदमी चलती हुई दुकानें बंद करने के लिए बाज मर्तबा नाफरमानी और कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से केस बुक हो जाता है, दुकान बंद करा दी जाती है, चालान पड़ता है, पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये सब जिल्लत बर्दाश्त करने की क्या जरूरत पड़ती है। एक नुकसान ये भी होता है कि ऐसे मौके पर हम दुकानें चलाकर रास्ता और सड़क और कानून के दूसरे अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन मुसलमान वो है रास्ते पर पड़ी हुई चीज हटा दे। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहूम ने फरमाया कि रास्ते पर पड़ी हुई चीज हटाना ईमान की अलामत है। तो रास्ता जाम करना, लोगों को तंग करना, ये ईमान के खिलाफ निफाक और कुफ्र की अलामत है। आखिरी बात ये देखें, इस वक्त मुसलमानों के जो हालात बनते जा रहे हैं, इन हालात में मुसलमानों को अपने अखलाक की तरफ तवज्जो देकर, रुजू इल्लाह और शरीयत की पाबंदी करके
پورے ملک میں مسلمانوں کے امن اور سکون اور اخلاق کا پیغام دینا ضروری ہے۔ پہلے اندر کے فرعون کو ہم ماریں گے تو پھر تب جا کے باہر کا فرعون مرے گا، باہر کے فرعون کی شکایت کرتے رہیں گے اور اندر کا فرعون ہم نہیں ماریں گے، کبھی مسلمانوں کے حالات سدھرنے والے نہیں ہیں۔ جب تک میں سچا مسلمان نہیں بنوں گا، شریعت کی اور قانون کی اتباع اور پابندی نہیں کروں گا، اس وقت تک میرے حالات سدھرنے والے نہیں ہیں۔ کسی نے کہا اے اللہ میرا حال دیکھ، تو اللہ نے کہا بندے پہلے اپنے اعمال دیکھ، میرا حال دیکھ۔ میں نے جب اللہ سے کہا تو اللہ نے کہا پہلے اپنے اعمال دیکھ۔ تو ہمارے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات بن رہے ہیں۔ تو آپ حضرات سے بہت ہی ادباً گزارش ہے کہ ہم رات اپنے وقت پر اپنی ہوٹل اور دکان بند کرنے کا اہتمام کریں، ناجائز طریقے سے کمائی جانے والی کمائی سے توبہ کریں، اور ہم ایک اچھے مسلمان بن کر پورے دیش اور پورے ملک اور پورے شہر میں ایک اچھا میسیج بنانے والے، پیغام پہنچانے والے بنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فکر کی سنجیدگی نصیب فرمائے اور ہمیں اس قانون کی پابندی نصیب فرمائے۔ یہ جو ہم نے جو یہ کام کیا ہے، کسی کی اس میں بے عزتی کرنا بلکہ اپنا مطلب نہیں ہے، یہ اپنی قوم کے درد سے ایک افسوس کرتے ہوئے، نادم ہوتے ہوئے ہم یہ میسیج دے رہے ہیں۔ مہربانی کر کے اس میں کوئی غلط فہمی سے نہ لیا جائے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے لیا جائے، اور جیسا کیا بولتے ہیں وہ قانونی طور سے بھی غلط ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی غلط ہے۔ تو ہم کو اسلام دنیا مسجد میں اور نمازوں میں نہیں بلکہ دنیائی معاملات میں بھی ہم اسلام کو ظاہر کر کے اسلام کی صحیح نمائندگی کرنے والے بنے اور اسلام کو بدنام کرنے والا بنے۔ اور اس میں ہم بھی میں بھی اس میں گنہگار ہوں، میں کوئی دودھ کا دھلاوا بول کے نہیں بول رہا۔ تو اللہ آپ لوگوں کو اور ہم سب کو توفیق دے کے ہم اسلام پہ چلنے والے بنے اور ایمان پہ چلنے والے بنے۔ یہ کہ ایک قوم کی درد اور معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ بیان دیا گیا ہے، اس کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے لیا ہم سب۔